Hello students, welcome to my channel Cryptoscience. Today we are going to learn about animal tissues. Previously we learned a lot about the plant tissues. Now we are going to study about the animal tissues. In this video we are going to discuss the types of animal tissues and their functions. So let's start the video. Animal tissue is a group of connected cells that have a similar function within an animal. As I have told you earlier, that tissue is the group of cells. Which type of cells? The cells which are similar in structure and function. So animal tissues are the group of cells which are similar in structure and function within an animal. Based on their function, animal tissues are classified into different types. 4 basic types: epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, nervous tissue. Again, these 4 tissues are divided into some types. Let's have an overview of the division of tissues. 4 tissues like epithelial, connective, muscular and nervous. These are divided into again further subtypes. Like first, epithelial tissue is divided into squamous epithelium, cuboidal epithelium, columnar epithelium, ciliated epithelium and glandular epithelium. These 4 epithelium tissues are different from each other in terms of their structure, in terms of their location, in terms of their function. अलग अलग बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग जगह पर लोकेटेड हैं और वो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. सेकेंड वन इज कनेक्टिव टिश्यू. इट इज डिवाइडेड इनटू प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, skeletal connective tissue and vascular connective tissue. Third one, muscular tissue, striated tissue, unstriated. Third one is cardiac, and fourth one is last, nervous tissue. Okay, let's discuss them one by one. First we have the epithelial tissue. Epithelial tissue is known as the protective animal tissue, means its main function in the body is protection. How it protects? Because it form the continuous sheet on both the external and internal surface of the body. हमारी जो बॉडी है उसके बाहर और उसके अंदर एक लाइनिंग बना लेता है ये टिश्यू. कॉन्टिन्यूस शीट एक लाइनिंग बना लेता है. दैट्स वाई इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन. इट इज लोकेटेड, वेयर इट इज लोकेटेड, इट इज प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी. Lining of body cavities, buccal cavity, pharynx, food pipe, stomach, nose, lungs and all the blood vessels. तो जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है बेसिकली वो बॉडी के हर पार्ट्स की लाइनिंग बनाता है, कवरिंग करता है ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को. लेट्स हैव द फंक्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू. फर्स्ट इज द मेन फंक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम द मैकेनिकल एंड केमिकल इंजरीज एंड वायरल इन्फेक्शन. जो एपिथेलियल टिश्यू है वो क्या करता है, हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है किसी भी इंजरी से, किसी भी तरह के इन्फेक्शन से. सेकेंड वन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. थर्ड, सिक्रीशन लाइक स्वेट, सलाइवा, म्यूकस, एंजाइम, टीयर्स एट्सेट्रा. हमारी बॉडीज़ के अंदर कुछ सेल्स होती हैं जो कुछ ना कुछ सिक्रीट करती हैं. जैसे हमारी माउथ के अंदर म्यूकस से सलाइवा सिक्रीट होता है, ठीक है. हमारी आइज़ में टीयर्स सिक्रीट होते हैं, ठीक. तो ये सारी की सारी सेल्स कौन सी होती हैं, एपिथेलियल सेल्स होती हैं. फोर्थ इज इट एक्ट एज बैरियर एंड लास्ट वन इज इट हैज़ द रीजनरेशन पावर. लेट्स हैव द टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स ऑन द बेस्ड ऑफ द सेल शेप एंड द फंक्शन. अलग अलग शेप के बेसिस पर सेल की किस तरह की शेप है या क्या फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं. तो एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप्स का है, 5 टाइप्स का है. फर्स्ट वन इज स्क्वेमस एपिथेलियम, सेकंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, थर्ड वन इज कॉलमनर एपिथेलियम, फोर्थ सिलिएटेड एंड फिफ्थ ग्लैंडुलर. तो ये डिफरेंट जो टाइप्स हैं ये किस बेसिस पर हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सेल शेप एंड फंक्शन. फर्स्ट we will discuss that is squamous epithelium. As the name is indicating, the cells are square in shape. Squamous means they are square in shape. You can see in this picture that the cells are thin, flat and form a delicate line. This is called simple squamous epithelial cells. अगर सेल्स मिलकर एक लेयर बनाती हैं, बहुत सारी स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स मिलकर एक लेयर बनाती हैं, दे आर नोन एज
सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स। बट अगर वो मिलकर बहुत सारी लेयर्स बना देती हैं, वन बाय वन, एक के ऊपर एक बहुत सारी लेयर्स बना देती हैं, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स। सो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स का फंक्शन क्या है? इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड इट इज लोकेटेड, वेयर इट इज लोकेटेड? Esophagus and lining of the mouth. Skin epithelial cells are arranged in many layers. हमारी जो स्किन होती है वहाँ जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो बहुत सारी लेयर्स में प्रेजेंट होती हैं, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स। स्ट्रेटा बना देते हैं, एक लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, इट फॉर्म्स द स्ट्रेटा। ओके, द फंक्शन इज प्रोटेक्शन ऑफ द अंडरलाइंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी। Next is cuboidal epithelium. Name is indicating the shape is cube. So the cells are cube-like. Location, it is located in the kidney tubules, salivary glands, ciliary bodies, sweat glands and pancreatic duct. And function is mechanical support and secretion of the digestive enzyme and hormones, which play a very important role in the functioning of our body. Next is the columnar epithelium. The cells are column-like. They are cylindrical in shape and pillar-like cells. Elongated cells are present. Okay, लंबी cells होती हैं, elongated cells होती हैं. Location, it is located in the pharynx, stomach, intestine, larynx and oviduct. Function, it helps in the secretion and the absorption. Next is the ciliated epithelium. Ciliated epithelium is actually the modified columnar epithelium. If the columnar epithelial cells are having the cilia, it is known as ciliated epithelium. Okay, अगर columnar epithelium cells, कुछ columnar epithelial cells cilia modify कर लेती हैं तो उसको हम कह देते हैं ciliated epithelial cells. It is located in the lining of trachea, which is known as the windpipe, fallopian tubes, lungs, kidney tubules. Function, movement of the liquid and the suspended solid particles. Movement of the egg and zygote. Removal of the unwanted particles from trachea. जो ciliated epithelium cells है ये क्या करती हैं? एक्चुअली उनमें सीलिया प्रेजेंट होता है। उस सीलिया की मूवमेंट से जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं सब्सटेंसेस के अंदर वो रिमूव हो जाते हैं। लाइक हम एयर का एग्जांपल ले सकते हैं। Whenever we breathe, हम सांस लेते हैं, we inhale the oxygen, we inhale the air. तो उस एयर में कुछ इम्प्योरिटीज़ भी हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो जब आगे हमारे लंग्स में जाने लगते हैं, लंग्स में जाने से पहले ट्रैकिया में जो ये टिश्यू प्रेजेंट होता है, सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, वो इसको डस्ट को या अदर जो पार्टिकल्स होते हैं, अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, उनको वहीं रिमूव कर देता है और जो फिल्टर एयर है उसको ही अंदर जाने देता है। Next is the glandular epithelium. It is also the modified columnar epithelium. It is located in the stomach, intestine and other secretory organs. The name is indicating it forms the glands and the function of the gland is to secrete something. Okay, glands का function क्या है हमारी बॉडी में? कुछ ना कुछ secrete करना. Like it secrete the oil, sweat, milk, digestive enzyme and the hormones. तो ये क्या करते हैं? Secretion secrete करते हैं. ठीक है, you can see in this diagram that how the glandular epithelium perform the functions. Next is the connective tissue. This was all about the epithelial tissue and the types of epithelial tissue, 5 types. Now second tissue is the connective tissue. Name is indicating its main function is connection. Connection कहाँ? बॉडी के different parts में connection. वो कैसे होगा? किसी ना किसी अदर टिश्यू के थ्रू होगा। ओके, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द पैकिंग टिश्यू। पैक करता है यानी कि दो ऑर्गन्स के बीच में या दो टिश्यूज़ के बीच में जो स्पेस रह जाता है वहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू आ जाता है और वो उन टिश्यूज़ को पैक कर देता है। द टिश्यू विच कनेक्ट द डिफरेंट टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स इन द बॉडी एंड प्रोवाइड दैम रिजिडिटी, सपोर्ट एंड फंक्शन। कनेक्टिव टिश्यू क्या है? ये क्या करता है? पैकिंग का काम करता है, कनेक्ट करता है डिफरेंट टिश्यूज़ को या ऑर्गन्स को और उन्हें रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. इट इज ऑफ 3 टाइप्स.
proper connective tissue, skeletal connective tissue, and third one is vascular connective tissue. First we will have the proper connective tissue. It is also known as the binding tissue. ये क्या करता है? बाइंड करके रखता है, जोड़ के रखता है. It is the most abundant type of connective tissue. हमारी बॉडी में connective tissue का मैक्सिमम पार्ट क्या है? Proper connective tissue है. Types of proper connective tissue. First one is loose connective tissue. It contains less fiber. Gap होता है. It contains less fiber and more matrix. For example, areolar tissue, adipose tissue. Adipose tissue क्या करता है? फैट को स्टोर करता है. हमारी स्किन के नीचे एक एडिपोज टिश्यू की लेयर होती है. विंटर्स में या वैसे भी वो हमें हीट प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है. सेकेंड वन इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू. डेंस मीन्स ज़्यादा. इट कंटेन्स मोर फाइबर्स एंड लेस मैट्रिक्स. फाइबर ज़्यादा होते हैं और खाली स्पेस कम होता है. फॉर एग्जाम्पल ligaments and tendons. Very important, ligaments and tendons. Let's have the difference between ligament and tendon. Very important question. Ligament, these are strong but elastic tissue. Tendon, it is also strong but non-elastic tissue. Ligament, it joins two bones. दो bones को join करता है ligament. But जो tendon है, it joins bone to the muscle. ये bone को muscle से connect करता है, attach करता है. और लिगामेंट दो बोन्स को कनेक्ट करता है. लिगामेंट कंटेन्स लेस फाइबर्स एंड आर फाउंड स्कैटर्ड इन द मैट्रिक्स. फाइबर्स कम होते हैं और वो मैट्रिक्स में अलग अलग जगह पर स्कैटर्ड होते हैं. टेंडन्स में फाइबर्स आर लॉन्ग एंड अकर इन द पैरेलल बंडल्स. बहुत सारे फाइबर्स होते हैं और मैट्रिक्स कम होता है. नेक्स्ट इज द स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू. It is also known as the supporting tissue. Our skeletal system is the support of our body. अगर हमारा skeletal system नहीं है, ना हम खड़े हो पाएंगे, ना हम चल पाएंगे, हम कोई भी movement show नहीं कर पाएंगे. Okay? Types of the skeletal tissue: bone and cartilage. Very important. First one is bone. Bone क्या है? हमारी पूरी body को का एक framework तैयार करता है. We often say that आवर बॉडी इज़ द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स. हम हमेशा कहते हैं कि हमारी बॉडी क्या है? हड्डियों का एक ढांचा है. ठीक है, तो बोन्स क्या है? दीज आर द हार्डर, रिजिड एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू. फ्लेक्सिबल नहीं है आपकी बोन. मैट्रिक्स ऑफ द बोन इज़ वेरी हार्ड. हमारी बोन जो है उसका मैट्रिक्स हार्ड क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्रोटीन ओजीन. एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बोन में कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट है? ओजीन प्रोटीन. लोकेशन, इट फॉर्म्स द एंडोस्केलेटन ऑफ द वर्टिब्रेट्स. हमारा जो ढांचा है, हमारा जो एंडोस्केलेटन है, वो कौन बनाता है? बोन्स बनाती हैं. फंक्शन, इट हेल्प्स इन लोकोमोशन. मूवमेंट में हेल्प करता है. सेल्स ऑफ द बोन मैरो गिव राइज टू ब्लड सेल्स. हमारी जो ब्लड सेल्स हैं, आरबीसीज है, ये कहाँ बनती हैं? बोन मैरो में बनती हैं. इट फॉर्म्स द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स. एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, सपोर्ट देता है हमारी बॉडी को, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, और जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं लाइक लंग्स हैं, हार्ट हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करके रखता है. इट इज़ द रिजर्वॉयर ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. हमारी बोन्स किसकी बनी होती हैं? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की. सो ये जो है एक स्टोर हाउस है ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. नेक्स्ट इज द कार्टिलेज. कार्टिलेज इज सॉफ्ट एंड इलास्टिक. बोन जो था वो हार्ड था, कार्टिलेज सॉफ्ट है. इट्स मैट्रिक्स इज डेंस एंड इलास्टिक ड्यू टू द स्पेशल प्रोटीन कॉन्ड्रीन. बोन में कौन सी प्रोटीन थी? ओजीन. कार्टिलेज में कौन सी प्रोटीन है? कॉन्ड्रीन. ओके, और कॉन्ड्रीन प्रोटीन की वजह से ये सॉफ्ट है, इलास्टिक है. इट इज लोकेटेड इन द एपिग्लोटिस, लैरिंक्स, ट्रैकियल रिंग्स, एट एंड्स ऑफ द बोन्स, in between the ribs. You can see in this diagram how the bones look like, and in between the bones, or we can say at the ends of the bones, cartilage tissue is present. Function, it supports various body parts. It also absorbs shock and function as the cushion against stress. क्या होता है? कोई भी शॉक लगता है, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा आपको, ठीक है, करंट लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, तो ये जो कार्टिलेज टिश्यू है ये कुशन बना लेता है, and that cushion protects you from the stress. ठीक है,
हीट शॉक लगा है, एकदम से आपका हाथ जल जाता है, आप हटा लेते हो, तो ये कार्टिलेज क्या करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है, ये उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी सेफ रहती है। नेक्स्ट टिश्यू इज द वेस्कुलर टिश्यू। इट इज ऑल्सो नोन एज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। लास्ट जो हमने किया था वो भी कनेक्टिव टिश्यू था, कनेक्टिव टिश्यू था, बट ये जो वेस्कुलर टिश्यू है ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, बट ये कैसा है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, मीन्स लिक्विड लाइक है ये। दिस टिश्यू ट्रांसपोर्ट nutrients, oxygen, vitamins and hormones to the cells and remove nitrogenous waste, carbon dioxide and other products from the cell. ये जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है इसका काम क्या है, आपको पता है, पानी है या कोई भी लिक्विड है उसके साथ आप कुछ भी फ्लो करवा सकते हो, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स आप फ्लो करवा सकते हो, तो ये क्या करता है, फ्लो का काम करता है, और इस टिश्यू के फ्लो के साथ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, विटामिन, ये हमारी पूरी की पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, और जो वेस्ट होता है वो इसके थ्रू बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। इट इज ऑफ टू टाइप्स, ब्लड एंड लिम्फ। blood is the bright red color fluid. You all have seen the color of the blood is red. It is formed of plasma and blood cells and it is slightly alkaline. Its pH is 7.4. The blood cells are formed where? कहाँ बनती हैं blood cells? अभी बताया था मैंने आपको, in bone marrow. Next is the function of blood. It transports the oxygen, nutrients, hormones, etc. in the whole body. It maintains the body temperature, water balance and pH of the body. And third one is WBC, white blood cells that help to fight the diseases. WBC क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम है, ये हमें डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज द लिम्फ। लिम्फ इज एक्चुअली फिल्टर्ड ब्लड डिवॉइड ऑफ आरबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स। जो ब्लड है वो रेड इन कलर होता है और जो लिम्फ होता है दैट इज द कलरलेस फ्लूइड, ठीक है, बिकॉज उसमें रेड ब्लड सेल्स अवेलेबल नहीं होती। जो ब्लड है दैट इज रेड ड्यू टू रेड ब्लड सेल्स, और रेड ब्लड सेल्स में ऐसा क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, तो उसकी वजह से इसका कलर क्या होता है, रेड होता है, ठीक है। बट लिम्फ क्या है, इसको हम एक फिल्टर्ड ब्लड कह सकते हैं जिसके अंदर आरबीसीज एब्सेंट है। फंक्शन, इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, ठीक है, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है। इट इज़ द मिडल मैन फॉर द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यूज। वेरी इंपॉर्टेंट। लिम्फ को हम किस नाम से जानते हैं, मिडल मैन। मिडल मैन का क्या काम होता है, किसी भी चीज़ को इधर से उधर लेके जाना, एक्सचेंज करना। तो ये क्या करता है, सब्सटेंस का एक्सचेंज करता है बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यूज। बॉडी में जितनी भी टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, उनमें और ब्लड के बीच में सब्सटेंसेस की एक्सचेंज करता है। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड इज रेड, अभी बताया मैंने आपको, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, एंड लिम्फ इज कलरलेस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन किस में प्रेजेंट होते हैं, रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स आर प्रेजेंट इन द ब्लड, बट आरबीसी एंड प्लेटलेट्स आर एब्सेंट इन द लिम्फ। लिम्फ में सिर्फ क्या प्रेजेंट है, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है। ब्लड, इट कंटेन द मोर फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन क्या है, इट इज ए प्रोटीन, and lymph it contain less fibrinogen. Blood, here the protein contents are high, in lymph the protein contents are low. Blood flow from heart to body organs and from organs to heart. Very important. ब्लड का जो फ्लो होता है वो हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स तक भी जाता है, और बॉडी ऑर्गन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट तक भी आता है। इसलिए हम ब्लड के सर्कुलेशन को कहते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन होता है क्योंकि हार्ट से ऑर्गन्स तक जाना, ऑर्गन से हार्ट तक आना। पर जो लिम्फ है दैट फ्लोज फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स टुवर्ड्स द वेन्स। नेक्स्ट टिश्यू इज थर्ड टिश्यू विच इज द मस्कुलर टिश्यू। वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी जो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है, जो मूवमेंट्स हैं, वो सारी किसकी वजह से है, मस्कुलर टिश्यू की वजह से है। इट इज़ नोन एज द कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू बिकॉज इट इज़ कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। हमारी मसल्स, हम अपने हाथ को मूव कर सकते हैं, हम मुट्ठी भी बना सकते हैं, उसको ओपन भी कर सकते हैं, दैट इज ड्यू टू द मसल्स। कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। मस्कुलर टिश्यू, इट फॉर्म्स 40% of the total body weight. The cells of the muscular tissue are long and fiber-like. They are known as muscle fibers. Okay. Muscular tissue are of three types.
or we can say that muscles are of three types: striated, unstriated, and third one is cardiac. Let's discuss them. Types of muscular tissue. First one is smooth muscle cells. These are also known as unstriated muscle cells. Second one, which are present in the heart, these are known as cardiac muscle cells. And third one is striated muscle cell. So these are the three types of muscles. You can see the difference or the features between the striated, unstriated, and the cardiac muscle. First is the features. First feature is the striated muscle. They have the alternate bands of dark and light color. जो striated muscle होती हैं उनको striations होती हैं, उनके ऊपर striations होती हैं. Striations means उनके अंदर partitions type दिखता है due to dark and light band. Unstriated muscles, they don't have the bands. That's why they are known as smooth muscles. Okay, and third one, cardiac muscles, they have the faint striation. बिल्कुल हल्की हल्की लाइनिंग होती है उनके ऊपर, like you have seen in the diagram on the last slide. The striated muscle, they are also known as the skeletal muscles. They are attached to the bones. That's why they are known as the skeletal muscle. हमारा जो skeletal system है किसका बना हुआ है, मैंने अभी बताया था bones का बना हुआ है. तो striated muscle को हम skeletal muscles भी कहते हैं because they are attached to the bones. They are also known as the voluntary muscles. Voluntary muscles are those muscles whose contraction or whose working is under the control of our will. हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग, वॉलेंट्री मतलब हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग उनकी मूवमेंट्स होती हैं. अगर आप अपने हाथ उठाना चाहते हो तभी आप उठाओगे, ठीक है. तो आपकी जो हैंड्स की मसल्स हैं, अगर आप चलना चाहते हो तभी आप चल पाओगे. तो आपकी जो पैरों की मसल्स हैं वो सब क्या है, स्ट्रेटेड मसल्स हैं या वॉलेंट्री मसल्स हैं. तो स्ट्रेटेड मसल्स का सेकेंड नेम क्या हुआ, स्केलेटल मसल. थर्ड नेम वॉलेंट्री मसल्स, क्योंकि इनकी जो कंट्रैक्शन है, जो वर्किंग है, वो हमारे अकॉर्डिंग है, हमारे कंट्रोल में है. बट जो अनस्ट्रेटेड मसल है, दे आर नोन एज द इनवॉलेंट्री मसल्स बिकॉज देयर कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट अंडर आवर विल. हमारे हार्ट की पंपिंग आप उसको चाह के भी नहीं रोक सकते. ब्रीदिंग, लंग्स की जो मसल्स है, आप उसको चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकते. ब्लिंकिंग ऑफ आवर आईज, पलकों का झपकना आपके कंट्रोल के अंडर नहीं है, ठीक है. तो यहाँ जो मसल्स होती हैं, दे आर अनस्ट्रेटेड मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स. कार्डिक मसल्स, दे आर ऑल्सो नोन एज द हार्ट मसल्स बिकॉज दे आर फाउंड इन द हार्ट वॉल. स्ट्रेटेड मसल, दे आर सिलेंड्रिकल इन शेप, अनब्रांच्ड and multinucleate. But the unstriated muscle, they are spindle shaped, unbranched and uninucleate. Whereas the cardiac muscle, they are cylindrical, branched and uninucleate. Very important, the cardiac muscles are branched. हार्ट ने हर जगह पर ब्लड को फ्लो करना है, पूरे बॉडी पार्ट्स में फ्लो करना है, तो इसलिए ब्रांचिंग कंपल्सरी है. तो हार्ट की मसल्स कैसे होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं. नेक्स्ट इज द लोकेशन ऑफ ऑल दीज मसल्स. स्ट्रेटेड मसल्स, दीज आर प्रेजेंट इन द बॉडी पार्ट्स सच एज लिम्स. मैंने अभी बताया कि आपके हैंड्स की मूवमेंट, हैंड्स और आपकी जो लेग्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, लिम्स, ठीक है. तो आपकी जो हैंड्स की मूवमेंट है, आपकी लेग्स की मूवमेंट है, दैट इज़ अंडर योर कंट्रोल. अगर आप चाहते हो चलना तभी आप चल पाओगे, अगर आप चाहते हो लिखना तभी आप लिख पाओगे, ठीक है. फेस एंड द नेक, आप अपने फेस को मूव करना चाहते हैं तभी कर पाओगे, आप अपने नेक को मूव करना चाहते हैं तभी आप कर पाओगे. तो यहाँ पर स्ट्रेटेड मसल्स आर प्रेजेंट. Unstraighted muscle, they are present in the walls of all the hollow and tubular visceral organs like alimentary canal. Alimentary canal क्या है, आपकी फूड पाइप जो फूड को कैरी करती है, माउथ से लेके आगे स्टमक तक लेकर जाती है. तो उसकी जो मूवमेंट्स है, दैट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल. स्टमक, माउथ, यूरिनरी ब्लैडर, ब्लड वेसल्स, इरिस एटसेट्रा, यहाँ जो मसल्स प्रेजेंट है, दे आर अनस्ट्रेटेड मसल. एंड द कार्डिक मसल, दे आर प्रेजेंट इन द हार्ट. फंक्शन, स्ट्रेटेड मसल, दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, आपकी बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट, हैंड्स की मूवमेंट, लेग्स की मूवमेंट, ठीक है. लोकोमोशन, आपकी पूरी बॉडी की मूवमेंट, ठीक. एंड द इंजेशन ऑफ द फूड. अनस्ट्रेटेड मसल, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इन वॉल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है कि जो हमारा फूड होता है, जब भी आप नेक्स्ट जब आप डाइजेशन के बारे में पढ़ोगे, जब आपका फूड जब माउथ में एंटर करता है, वहाँ से लेके जब वो स्टमक तक जाता है, तो हमारी फूड पाइप जो है वो माउथ और स्टमक को कनेक्ट करती है, ठीक है. अब उस फूड की जो मूवमेंट है वो कैसे होती है, वो फूड पाइप की मस्कुलर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से होती है. तो वो जो मसल्स की मूवमेंट है उसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है.
वहाँ पर प्रेजेंट है, वहाँ वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एंड ब्लिंकिंग ऑफ आइज, पलकों का झपकना। कार्डियक मसल हार्ट में प्रेजेंट है, हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है, जिसकी वजह से वो पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है, सर्कुलेट करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट एंड लास्ट इज अवर नर्वस टिश्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी बॉडी जो है, ह्यूमन बींग्स की बॉडी है या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी बॉडी क्या करती है, अपने एनवायरनमेंट की को रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है। अगर आपको कोई हिट करता है तो आप फटाफट रिस्पॉन्स देते हो, बट अगर आप किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को हिट करते हो, अगर आपने किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को हिट किया है, उसको कट किया है, उसको तोड़ा है, तो उसको कुछ फील नहीं होता। तो ये जो सेंसिटिविटी है, रिस्पॉन्स है टू आवर एनवायरनमेंट, टू एनी स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है, कोई भी चीज़ जो आपको प्रोवोक करती है रिस्पॉन्स देने के लिए, दैट इज स्टिमुलस। किसी ने आपको पिंच किया तो उसका पिंच करना क्या था आपके लिए, स्टिमुलस। आप फटाफट अपने आप को पीछे कर लेते हो, दैट इज़ योर रिस्पॉन्स। तो ये जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन है, या अपने सराउंडिंग्स में होने वाले जो चेंजेस हैं उनके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देना, दैट इज़ ड्यू टू नर्वस टिश्यू, आवर नर्वस सिस्टम। नर्वस टिश्यू, इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ द न्यूरॉन्स और द नर्व सेल्स एंड नर्व फाइबर्स। नर्व सेल्स को हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं। न्यूरॉन और द नर्व सेल, इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। बेसिक कंपोनेंट क्या है, नर्व सेल, हमारे नर्वस टिश्यू का। It is the active component of the nervous system. You can see that how a nerve look like, how a neuron look like. Let's discuss the structure of the nerve cell. Nerve cell is composed of, first part is the cell body. Cell body is star shaped. You can see that the head of the nerve cell is star shaped. Its cytoplasm contain a large nucleus. In the center the nucleus is present and several nasal granules. These nasal granules are granular bodies which are responsible for the synthesis of proteins. Okay, so this is the first part of the nerve cell, which is known as cell body. Second part is dendrites. You can see in this picture that there are some projections arising from the cell body. These are small and highly branched processes arising from the cell body and receive nerve impulses from other neurons. ये जो डेंड्राइट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, सेल बॉडी से कुछ प्रोजेक्शंस अराइज होती हैं और ये क्या करते हैं, अदर न्यूरॉन से कनेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मैसेज है वो फ्रॉम वन नर्व टू सेकेंड नर्व मूव करता रहता है। अगर आपके पैर में कोई हिट करता है, आपके फुट में कोई हिट करता है, तब भी वो मैसेज ब्रेन तक जाता है। हाउ? क्योंकि हमारी बॉडी में पैर से लेके सिर तक भी बहुत सारे नर्व्स हैं जो एक दूसरे के साथ अटैच हैं और फ्रॉम वन नर्व टू सेकेंड नर्व द मैसेज ट्रांसफर्स, ठीक है। अगर आपके हाथ में कोई हिट करता है तब भी आपका मैसेज ब्रेन तक जाता है, बिकॉज द नर्व्स आर अटैच टू ईच अदर, न्यूरॉन्स आर अटैच टू ईच अदर. Okay, so these dendrites, they receive the nerve impulses from the other neurons. Third part is axon. Axon, you can see the long extension of the cell body that transmit the nerve impulse to the other cells. It is surrounded by a covering called myelin sheath. This myelin sheath is present. The point at where the sheath is absent, there are certain points during the axon where the myelin sheath is absent. These points are known as nodes of Ranvier. The axon branches at the end and forming axon terminals. At the end you can see here that the axon is divided into some branches which is forming the axon terminals. Okay, so like this the various neurons are attached to each other. Next is the function of the nervous system. Nerves in our body are like the cables made up of nerve फाइबर्स. नर्व्स क्या है? हमारी केबल्स हैं. जैसे हमारे घर में केबल कनेक्शंस होते हैं, वायर्स होती हैं. वायर्स क्या करती हैं? एक जगह से दूसरी जगह तक सिग्नल्स को लेके जाती हैं. सो वही सेम नर्व्स क्या करती हैं? सिग्नल्स को लेकर जाती हैं, ट्रांसमिट करवाती हैं. सेकेंड, नर्व फाइबर्स कंडक्ट मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर पार्ट. वायर्स की तरह काम कर रही हैं, केबल्स की तरह काम कर रही हैं, तो एक जगह से मैसेज दूसरी जगह तक लेके जाती हैं. थर्ड, दे रिसीव द स्टिमुलाई. स्टिमुलस अभी बताया मैंने आपको. स्टिमुलस क्या है? एनीथिंग दैट प्रोवोक यू फॉर रिस्पॉन्सिंग फ्रॉम द एनवायरमेंट
and send message to the brain and the spinal cord. कुछ भी अगर आपके एनवायरनमेंट में ऐसा कुछ होता है, चेंजेस होते हैं, तो फटाफट आपका मैसेज कहाँ तक जाता है? ब्रेन तक, और ब्रेन आपको बताता है कि आपको कैसे रिस्पॉन्स करना है. लास्ट, द इम्पल्सेस फ्रॉम द ब्रेन and the spinal cord are carried to the various body organs. Very important. नर्व्स का काम सिर्फ ब्रेन तक मैसेज लेके जाना ही नहीं है, ब्रेन ने जो आपको ऑर्डर दिया है उसको भी वापस उस ऑर्गन तक पहुंचाना है. छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. लाइक अगर आपके हैंड में कोई आपको पिन लगाता है, हर्ट करता है कोई आपको, ठीक है, तो फटाफट आपके हैंड से मैसेज कहाँ जाता है? ब्रेन तक. और ब्रेन आपको क्या कमांड देता है कि आप अपना हाथ हटा लो, स्टे अवे. ठीक है, तो आपकी फिंगर से लेके ब्रेन तक मैसेज के जाना, प्लस आपके ब्रेन से लेके फिंगर तक वापस उस कमांड का आना, उस मैसेज का आना, दैट इज ड्यू टू नर्व्स. ठीक है, तो नर्व्स क्या करती हैं? डिफरेंट ऑर्गन्स को ब्रेन के साथ अटैच करती हैं और ब्रेन को डिफरेंट ऑर्गन्स से अटैच करती हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर चैप्टर ऑफ एनिमल टिश्यूज. एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू and nervous tissue. Now students, there are some questions for you from the whole chapter plant tissue and the animal tissue. In last video we discussed about the plant tissue. In this present video we have detailed about the animal tissue. From both the videos there are some questions and you have to reply the answer in the comment section. First question is, in the desert plants how does rate of loss of water get reduced? जो डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं वहाँ पर लॉस ऑफ वाटर कम क्यों होता है? Why? Second, water hyacinth floats on the water surface. जो water hyacinth होता है that floats on the water surface. Why? Both these questions are from the plant tissue. Third, name the muscular tissue that functions throughout the life without fatigue. अभी बात की हमने मस्कुलर टिश्यू के बारे में कि 3 टाइप की मसल्स होती हैं. अब उन तीनों में से वो कौन सा मस्कुलर टिश्यू है जो हम पूरी लाइफ वर्किंग करता है बिना थके, बिना रुके? हिंट दे दिया मैंने आपको. नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ बोन सेल्स? एंड द लास्ट, विच ब्लड सेल्स डील विद द इम्यून रिएक्शन? हमारे इम्यून सिस्टम के साथ कौन सी ब्लड्स रिलेटेड हैं? विच ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर इम्यूनिटी? Thank you students, and reply these questions in the comment section. If you have any doubt, then you can ask in the comment section below. If you like this video, then please like and share it and subscribe to the channel for more such videos.